बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ एक तरफ एलजी और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार, बल्कि दिल्ली की 2 करोड़ से ज्यादा की जनता जो है वो भी इस बात का फैसले का इंतजार कर रही है कि आखिरकार, क्योंकि हर बात को लेकर होता यह है कि दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में तकरार रहती है। दिल्ली सरकार कहती है कि जनता ने उन्हें चुन के भेजा है, पॉलिसीज बनाते हैं, लेकिन जब काम करने के लिए अधिकारियों से कहते तो उनकी सुनते ही नहीं है। तो ऐसे में अगर ट्रांसफर पोस्टिंग जो है चुनी हुई सरकार के पास होगी, उनकी बेहतर सुनेंगे, काम लिया जा सकेगा। लेकिन तो आपको बड़ी खबर बता दें, Article 239 AA3A confers legislative power to the NCTD. However, it does not confer legislative power to NCTD over all entries in List 2. Article 239 AA3 provides multiple safeguards to ensure that the interest of the Union of India is preserved. First, subclause A of clause 3 removes 3 entries in List 2 from the legislative domain of NCTD. It provides that NCTD shall not have the power to enact laws on matters with respect to entries 1, 2, and 18 of the state list, and entries 64, 65, and 66 of that list insofar as they relate to the said entries 1, 2, and 18. Second, subclause B of clause 3 clarifies that Parliament has the power to legislate on any matter for a union territory, including on subjects with respect to which NCTD has legislative power under Article 239 AA3A. In other words, Parliament has a plenary power to legislate on a subject in any of the 3 lists of the 7th schedule for NCTD. Third, it provides that where there is a repugnancy between a law enacted by the Legislative Assembly of NCTD and a law enacted by Parliament, the latter will prevail. The law enacted by the Legislative Assembly shall, to the extent of the repugnancy, be void. Unlike Article 254, which provides for the overriding power of Parliament only on subjects in the concurrent list, Parliament has overriding power in relation to the NCTD over subjects in both List 2 and List 3. Fourth, the second proviso to Article 239 AAC provides that Parliament may enact at any time any law with respect to the same matter by including a law adding to, amending, varying, or repealing the law so made by the Legislative Assembly. Fifth, under 239 AA7A, Parliament may by law make provisions for giving effect to or supplementing the provisions in the foregoing clauses of 239 AA, and for all matters incidental and consequential thereto. The article stipulates that such law shall not be deemed to be an amendment of the Constitution for the purposes of Article 368, which deals with the power and procedure to amend the Constitution. Thus, Article 239 AA3 balances between the interests of NCTD and the Union of India. तो देखिए, अधिकारों के लिए दिल्ली सरकार और एलजी आमने सामने, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, और अभी तक सीजीआई जिस तरह से फैसले को पढ़ रहे हैं, एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि 2019 का जो स्प्लिट वर्डिक्ट था जस्टिस अशोक भूषण का, उससे सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं है। यानी इस मामले को लेकर जो पुराना फैसला था, 2019 का जो फैसला था, जस्टिस भूषण का जो फैसला था, उससे सहमत नहीं है सुप्रीम कोर्ट। और वो फैसला क्या था? जजमेंट में कहा गया था कि दिल्ली गवर्नमेंट है नो पावर एट ऑल ओवर सर्विसेज, ये कहा गया था उसमें, और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये क्लियर कर दिया है, 5 जजों की बेंच ने ये क्लियर कर दिया है कि 2019 के स्प्लिट वर्डिक्ट से सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं है। जितेंद्र भाटी, ये अपने आप में एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है। हालांकि सीजीआई अभी अपना फैसला पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी फैसला पढ़ा जा रहा है, लेकिन कुल मिला के संकेत तो यही मिल रहे हैं कि जिस तरीके से सुनवाई के दौरान भी कहा गया था कि जो पार्लियामेंट की शक्तियां हैं वो असीम है। ऐसे में अभी तक तो नहीं लग रहा है कि जो अनुच्छेद 239A को जो जिस तरीके से कहा गया था उसके अंतर्गत की जो सेवाएं हैं वो क्या अपना, जिस तरह से जो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात की थी, क्योंकि दिल्ली यूटी है और कोई अगर पूर्ण राज्य होता है तो उसका अपने कैडर होता है, तो ऐसे में लग नहीं रहा है कि ये दिल्ली सरकार के पक्ष में जा रहा है। लेकिन अभी फैसला आगे बढ़ना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से पहले का जो स्प्लिट था उसमें कि किस तरीके से जो शक्तियां हैं क्या वो दिल्ली सरकार को दी जाए या केंद्र के पास रहे, और अभी फैसला आगे पढ़ा जा रहा है। लेकिन अभी की बात देखें तो संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं कि यहां पर जो दिल्ली सरकार है उसको ऐसी सफलता मिलती अभी तक नहीं दिख रही है। जी, अपने फैसले में आज ये भी तय होगा सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि जो सर्विसेज का कंट्रोल है वो किसके हाथ में होगा। जो 5 जजों की संवैधानिक पीठ है वो ये फैसला ले पाएगी। बिल्कुल, देखिए इस संविधान पीठ को ये तय करना है, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था कि जो फैसला है वो सब समिति से नहीं आया था, तो ऐसे में ये लंबी सुनवाई भी चली थी और पिछले साल मई में जो रेफर किया गया था, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो है 18 जनवरी को इसी साल जो है कोर्ट ने फैसला रिजर्व किया था।
कुल मिला के बात इसी चीज़ को लेकर के लगातार चली आ रही थी दिल्ली सरकार की तरफ से। जब अभिषेक मनु सिंघवी भी अपना दलील रख रहे थे, उन्होंने भी कहा था कि चुनी हुई सरकार जो है वो काम नहीं करा पा रही, तो ऐसे में अधिकार उनको दिया जाए। तो वहीं पर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है उन्होंने पक्ष रखा था। और ऐसे में अभी तक जो संकेत मुझे समझ में आ रहे हैं वो ये है कि जो फैसला है वो केंद्र सरकार के हक में जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्योंकि अभी फैसला जो है पूरी तरीके से नहीं पढ़ा गया है और पढ़ा जा रहा है, तो ऐसे में ये आज बिल्कुल स्पष्ट जरूर हो जाएगा कि आखिर दिल्ली का जो ट्रांसफर पोस्टिंग है, यानी जो नियंत्रण है अधिकारियों के ऊपर, वो किसका रहने वाला है, दिल्ली सरकार का या फिर केंद्र का। बिल्कुल जित उसकी बड़ी बातें हम बतला रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से क्या बातें रखी गई, जब दलीलें सामने रखी गई थी वो क्या रही? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच फैसला सुना रही है। इस वक्त सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ फैसला पढ़ रहे हैं और बहुत हद तक चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। 2019 का जो जस्टिस भूषण का स्प्लिट वर्डिक्ट था, यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट पुराने फैसले से सहमत नहीं है। समीर चौगांवकर जी हमारे साथ यहां स्टूडियो में भी मौजूद हैं। चौगांवकर जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, और आज दरअसल यह क्लियर हो जाएगा क्या कि दिल्ली सरकार क्या कर सकती है और एलजी की सीमा कहां तक है? देखिए समीर जी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है न्यायालय के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि आज सिर्फ दिल्ली एलजी और दिल्ली सरकार के मामला ही नहीं है, महाराष्ट्र को लेकर भी एक बड़ा निर्णय आएगा। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है पूरे देश के राजनीतिक दलों का इस निर्णय के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट पर ध्यान होगा। और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया है, उससे मुझे लग रहा है कि उन्होंने बहुत साफ बोल दिया है कि पुराने भूषण जी का जो 2019 का जो फैसला था उससे सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं है या संविधान पीठ सहमत नहीं है। तो मुझे लग रहा है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र के हितों को ध्यान रखना होगा, केंद्र के हितों को सुरक्षित करना होगा। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है आज सुप्रीम कोर्ट बहुत लैंडमार्क जजमेंट देने जा रहा है। नहीं, और समीर जी, अनुच्छेद 239A के बीच में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, चलाने का अधिकार किसके पास है, एलजी और सरकार के बीच के निर्णय को वो बहुत स्पष्ट क्लियर तरीके से आज डिफाइन सुप्रीम कोर्ट कर देगा। ठीक है, जो 2019 के फैसले का जिक्र हो रहा है और उस पर सहमति नहीं जताई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि एलजी स्वतंत्र तौर पर काम नहीं करेंगे और अनुच्छेद 239AA की व्याख्या दी थी। तो इसीलिए फैसला महत्वपूर्ण हो जाता है कि हक किसको है। अधिकारों की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, दिल्ली सरकार की याचिका में कहा गया कि ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार उनको दिया जाए। इस पर क्या फैसला आता है ये देखना होगा। समीर जी। बिल्कुल, मुझे लग रहा है दिल्ली सरकार को जिस हिसाब से केजरीवाल सरकार का लगातार इस बात की डिमांड थी कि जो अधिकारियों की पोस्टिंग होती, ट्रांसफर होती है, वो उन्हें देना चाहिए क्योंकि वह जनता के बीच से चुनकर प्रतिनिधि आए हुए और उनका जवाबदेही बनती है सरकारी कामकाज को कंट्रोल करने की। लेकिन केंद्र सरकार का यह अधिकार में है फिलहाल ब्यूरोक्रेसी पूरे। बिल्कुल सही बात है और इसलिए इस मामले में क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वानखेड़े साहब, हम अक्सर देखते हैं दिल्ली की आम जनता जो है वो पिसती रहती है। दिल्ली सरकार कहती है कि हम तो ये करना चाहते थे, लेकिन फाइल एलजी के पास भेजी गई, एलजी ने उस पर दस्तखत नहीं किए। आपको लगता है आज निपटारा हो जाएगा इस तरह की सारी समस्याओं का? नहीं, आज निपटारा होना तय है जी। जो संविधान पीठ जो निर्णय पढ़ रहे थे, जो इनिशियली उन्होंने इस बात को भी क्लियरिफाई किया कि पार्लियामेंट जहाँ तक यूनियन टेरिटरी है वहाँ पार्लियामेंट को अधिकार है कानून बनाने के। ये सवाल कानून बनाने का नहीं है, यहाँ सवाल आया है एग्जीक्यूशन का। यदि सरकार चुनी हुई एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है और एलजी को ही एग्जीक्यूट करना है तो फिर ये सरकार क्यों है? सवाल ये है। ये सरकार एक मजाक बन जाती है। हमारे यहाँ सरकार को नगर निगम से भी कम अधिकार थे। सर, तेजी से अपडेट आ रहा है, कम से कम एग्जीक्यूशन के अधिकार सरकार के पास होने चाहिए। हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार तेजी से अपडेट कर रहे हैं। जस्टिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से टिप्पणी आई है डेमोक्रेसी को लेकर, लोकतंत्र को लेकर। उनकी तरफ से कहा गया है ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है, जो फैसले में बात सामने आ रही है, दिल्ली में विधानसभा होनी चाहिए। ये ध्यान में रखकर अनुच्छेद 239 के तहत चुनी हुई सरकार की व्यवस्था एनसीटी दिल्ली में की गई। ऐसे में सरकार चलाने के सिद्धांत को ध्यान में रखना होगा। ये तमाम कोर्ट से बात निकलकर सामने आ रही है। अपनी बात कंटिन्यू रखिए जी अशोक जी। हाँ, तो वो इसी बात को मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय एक बात बड़ी क्लियर करेगा कि एलजी ये मात्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक एजेंट के रूप में ही नहीं या उनके अधिकारी के रूप में ही नहीं, उन्हें उस सरकार का भी एक गवर्नर होने का एक दायित्व निभाना होगा। और फिर जैसे बाकी राज्यों में होता है कि गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ दी रूलिंग पार्टी या जो सत्ता में लोग होते हैं ऑन द
एडवाइस ऑफ द मिनिस्ट्री चलते हैं, वैसा कुछ एक सर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टिप्पणी की है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने। इट हैज टू बी इंश्योर्ड दैट गवर्नेंस ऑफ स्टेट्स इज नॉट टेकन ओवर बाय द यूनियन। ये मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी सामने आई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आई है फैसले की। चौगांवकर जी, बिल्कुल, दिल्ली को लेकर जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आ रहा है उसमें बहुत स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि दिल्ली सरकार के अधिकार सीमित है। लेकिन मुझे लग रहा है आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा वो सिर्फ दिल्ली और एलजी के परिप्रेक्ष्य में नहीं रहेगा। आप देखते हैं कि बाकी राज्यों में भी जहां गवर्नर और केंद्र राज्य सरकारों के बीच में तनातनी चलती है, अधिकारों को लेकर हस्तक्षेप को लेकर आपस में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसका मैसेज भी अन्य राज्यों के राज्यपालों और सरकारों को जाने वाला है इसके अंदर। बिल्कुल। अच्छा समीर जी एक और स्टेटमेंट है वो भी मैं जल्दी से रीड कर दूं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया इस दौरान। इंडियन डेमोक्रेसी ब्लॉसम्स इन अ स्ट्रक्चर ऑफ फेडरल पॉलिटी। संघवाद की बात कही गई है। व्हाइल एनसीटीडी इज अ यूनिट, इट रिमेन्स अ फेडरल एंटाइटी। तो इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ये जो स्टेटमेंट इसको कैसे देखेंगे आप समीर जी? ये मुझे लगता है कि जो अभी चौगांवकर साहब ने जो बोला जी, ये उसी को रेखांकित करेगा। ये मात्र एलजी और यूनियन टेरिटरी तक नहीं रहेगा। यही तो बात है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली राज्यपाल और शासन के बीच में, या विरोधियों का शासन है, विरोधी पक्ष का शासन है। आप देखिए कहा क्या गया फैसले में, राज्यों का शासन अपने हाथ में ना ले केंद्र। ये साफ तौर पर फैसले में लिखा गया है, राज्यों का शासन अपने हाथ में लेने की कोशिश केंद्र ना करे। सरकार चलाने के सिद्धांत को ध्यान में रखना होगा। बहुत बड़ी बात जी, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात बोली है सुप्रीम कोर्ट ने कि केंद्र अपने हाथ में ले। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट इस बात को महसूस कर रहा है कि जिन राज्यों में राज्यपाल और सरकारों के बीच तनाव हो रहा है और राज्य प्रशासन काम नहीं, और कह दिया गया एग्जीक्यूटिव मामले का फैसला एलजी ही लेंगे। एग्जीक्यूटिव मामले का फैसला एलजी ही लेंगे। यानी जिस तरह की संभावना जताई गई थी, जिस तरह की उम्मीद जताई गई थी कि एलजी के और मुख्यमंत्री के अधिकारों का बंटवारा एक तरह से आज हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव मामले के फैसले एलजी ही लेंगे। ये साफ तौर पर कहा गया है। कहा यह भी गया है कि केंद्र की और दिल्ली सरकार की अपनी अपनी शक्तियां हैं। एग्जीक्यूटिव मामले के फैसले का अधिकार एलजी के पास होगा। ये क्लियर कर दिया है, बिल्कुल क्लैरिटी होती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने जो फैसला दिया है उसे इस वक्त सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ पढ़ रहे हैं और एक एक बात सामने आती हुई नजर आ रही है। कहा यह भी गया है कि राज्यों के मामले में जो दखलंदाजी है उसको लेकर भी एक बड़ी टिप्पणी की गई है। लेकिन एलजी के अधिकारों की क्योंकि हम बात कर रहे थे तो यह अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। एग्जीक्यूटिव मामले के फैसले के अधिकार एलजी के पास होंगे, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। लोकतंत्र में असली ताकत चुनी हुई सरकार के पास ही है, यह भी कहा गया है। तो देखिए एक एक करके चीजें साफ होती हुई नजर आ रही हैं। यानी दिल्ली की जो सरकार है वो चुनी हुई सरकार है, इसलिए लोकतंत्र में जो असली ताकत है जनता ने चुनी हुई सरकार को दी है, यह भी कहा गया है। मामले को लेकर जो फैसला दिया है कि एग्जीक्यूटिव मामले को एलजी का अधिकार रहेगा, मुझे लग रहा है इसे सुप्रीम कोर्ट को बहुत क्लियर करना पड़ेगा कि एग्जीक्यूटिव मामले कौन से आते हैं, तो एलजी क्या मानता है और दिल्ली की सरकार क्या मानती है। एग्जीक्यूटिव को लेकर मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन आप देखिए दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र में असली ताकत चुनी हुई सरकार के पास हो, वानखेड़े जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नहीं, जो सर कह रहे हैं मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूजन इसमें यह है कि यदि भूषण के जजमेंट से ये इत्तेफाक नहीं रखता जी, जो कहते हैं कि सर्विसेज वगैरह सारी एलजी के अंडर रहेगा और यहाँ एग्जीक्यूशन भी, एग्जीक्यूटिव मामले में भी फैसले एलजी लेगा, तो एग्जीक्यूटिव के मामले कौन से होंगे इनको भी रेखांकित करना होगा। ये फिर एक ग्रे एरिया में आप छोड़ के नहीं चलेंगे। अशोक जी, प्रिसाइजली तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था, यानी जो कामकाज है वो एलजी का अधिकार है। ये एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं? एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क यदि वो करेगी तो फिर दिल्ली सरकार क्या करेगी? कानून तो केंद्र बनाएगा, कानून पार्लियामेंट बनाएगा, तो फिर दिल्ली की सरकार क्या करेगी? सवाल वैसे की वैसे खड़े हैं अभी। फिर ये भी तो दूसरी टिप्पणी में कहा है कि लोकतंत्र में असली फैसले का अधिकार चुनी हुई सरकार को है। वही तो मैंने बोला कि ये कंफ्यूजन का मामला, उन्होंने एग्जीक्यूटिव के मायने क्लियर करने होंगे। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि सब दिल्ली की सरकार ने कोई डिसीजन ले लिया दिल्ली की जनता को ध्यान में रखते हुए, तो क्या एलजी उसको इंप्लीमेंट कर सकेंगे कि नहीं कर पाएंगे? एग्जीक्यूटिव पावर जब एलजी के हाथ में, नहीं जाहिर है क्योंकि अभी फैसला पढ़ना शुरू ही किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ अभी फैसला पढ़ रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे जो क्लैरिटी है वो होती हुई नजर आ रही है। एग्जीक्यूटिव मामलों पर फैसला एलजी ही करेंगे, ये क्लियर कर दिया गया है। अब
यह देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से मामलों को एग्जीक्यूटिव मामलों की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि लोकतंत्र में जो असली ताकत है वो चुनी हुई सरकार के पास हो। अब इसे कैसे सुनिश्चित किया गया है फैसले में सुप्रीम कोर्ट के, ये समीर जी देखने वाली बात होगी। देखिए, दिल्ली में विधानसभा क्यों बनाई गई? दिल्ली में सरकार का गठन इसलिए किया गया ना कि दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली की सरकार निर्णय ले सके और दिल्ली का विकास हो सके। एक और दिल्ली की सरकार अगर बना दी गई है तो मुझे लग रहा है कि इसमें चुनी हुई जो सरकार है, एक और टिप्पणी आई है, उसका अधिकार होना चाहिए। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेजी से फैसला पढ़ा जा रहा है। सर, एक और टिप्पणी आई है, मैं दर्शकों को बता दूं। वो टिप्पणी ये है कि किसी चुनी हुई सरकार के अधिकारों पर केंद्र द्वारा नियंत्रण रखा जाना इस मामले को उठाता है। और उन्होंने एक जो सेंटेंस बोला है जजेस ने, वो ये कि ऐसे में एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है। अशोक जी, ये कलेक्टिव जिम्मेदारी की तरफ इशारा किया गया है। एलजी और दिल्ली सरकार की कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि कामकाज स्मूथनिंग हो। ये कोई सर्वोच्च न्यायालय नई बात तो कर नहीं रहा है। जब एलजी हो या गवर्नर हो, इनको सरकार के साथ मिलजुल के ही उस राज्य की भलाई के लिए काम करना होता है। देखिए, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर ये आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया, दिन प्रतिदिन का प्रशासन दिल्ली सरकार के अधीन होगा। दिन प्रतिदिन का जो प्रशासन होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा, वो दिल्ली सरकार के अधीन होगा। अशोक वानखेड़े साहब, ये कितना अहम हो जाता है, ये जो लाइन कही गई है फैसले में? दिन प्रतिदिन का तो मामला बता दिया, लेकिन क्या अधिकारियों का ट्रांसफर ये दिन प्रतिदिन के मामले है? या दिन प्रतिदिन के मामले यही है कि साफ सफाई हो, पानी का सप्लाई हो, या फिर हेल्थ के इश्यूज हो, या एजुकेशन के इश्यूज हो? लेकिन एजुकेशन के इश्यूज में यदि डायरेक्टर एजुकेशन का ट्रांसफर होना हो तो वो किसके पास होगा? हालांकि अशोक वानखेड़े सर, देखिए, आखिर जो फैसला होगा, फाइनल फैसला, अभी वो आना बाकी है। लेकिन जो लगातार पढ़ा जा रहा है, जो स्टेटमेंट सामने आ रही है, उसमें साफ कहा गया कि दिन प्रतिदिन का जो प्रशासन है वो दिल्ली सरकार के अधीन होगा। ये एक क्लैरिटी इस स्टेटमेंट पर रखी जा रही, जो पढ़ा जा रहा है फैसला। जी समीर जी बोलिए। जी मुझे लग रहा है कि दिन प्रतिदिन प्रशासन तो दिल्ली सरकार के अधीन है, इसमें से नया कुछ भी नहीं है। वही तो बोल रहा हूं। रूटीन में तो दिल्ली सरकार ही करती है। मामला ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा हुआ है। एलजी तब हस्तक्षेप करते हैं जब कोई पॉलिसी का बड़ा मैटर आता है, कोई बड़ा बजट आता है, या एलजी को लगता है कि इस मामले को केंद्र सरकार ने भी देखना चाहिए, उस समय में एलजी इसमें हस्तक्षेप करते हैं। समीर जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, उसको लेकर जो सीजीआई की टिप्पणी है वो और क्लैरिटी देती हुई नजर आती है। वो सीजीआई ने यह कहा है कि अन्य राज्यों की तरह, ध्यान दीजिए, अन्य राज्यों की तरह एनसीटीडी सरकार के प्रतिनिधि रूप का प्रतिनिधित्व करता है। संघ की शक्ति का कोई और विस्तार संवैधानिक योजना के विपरीत होगा, यह कहा गया है। तो बहुत हद तक मुझे लगता है फैसला दिल्ली को से पढ़ा जा रहा है। जो टिप्पणियां सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट की मंशा बिल्कुल साफ होती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि दिल्ली को जिस हिसाब से अन्य केंद्रीय शासित राज्यों के से अलग रखा है, राइट, इसका मतलब एक पूर्ण राज्य है, एक आधा राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये जो इसके पहले जो उन्होंने कहा था कि बाकी यूनियन टेरिटरीज का जैसे सारे फैसले पार्लियामेंट और गृह मंत्रालय एलजी के थ्रू लेते हैं, क्या उस पे भी अंतिम निर्णय में प्रश्न उठाए जाएंगे और ये क्लियर कर दिया ज्यादा कि अधिकार दिए जाएंगे? दिल्ली जो है वो अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ जितेंद्र भाटी भी जुड़े हुए हैं, जो लगातार इस पर पूरी अपडेट दे रहे हैं। जितेंद्र, ठीक है, आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच आप देखिए एक और बड़ी खबर, जो फैसला पढ़ा जा रहा है, जो तीन बड़ी बात निकल कर आ रही है अभी तक की। दिन प्रतिदिन का जो प्रशासन है वो दिल्ली सरकार के अधीन होगा, यह कहा गया। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लैंड के अलावा बाकी अधिकार दिल्ली सरकार के पास है। यह भी जो फैसला इस वक्त रीड किया जा रहा है उसमें कहा गया है। तो जो मोटी बात, जो बड़ी बात इस वक्त सामने आ रही है, फैसला लगातार पढ़ा जा रहा है। दिल्ली दूसरे केंद्र शासित, एक बार फिर से आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन का जो प्रशासन है वो दिल्ली सरकार के अधीन है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, दिल्ली दूसरे केंद्र शासित राज्यों की तरह नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। हमारे साथ जितेंद्र भाटी जुड़े हुए। जितेंद्र, ये तमाम जो बड़ी बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है, आप क्या बता पा रहे हैं वहां से, क्योंकि लगातार फैसला भी पढ़ा जा रहा है? देखिए, अभी इसका मतलब निकालना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ बिंदु ऐसे आ रहे हैं जिनमें लग रहा है कि जो पावर है वो केंद्र के पास जा रही है। तो अगले पल जो है जब टिप्पणी आती है तो लगता है कि दिल्ली सरकार के पास। लेकिन ये जरूर जो है कि कोर्ट ने साफ किया है कि जब दिल्ली के अंदर विधानसभा बनाई गई है
तो ऐसे में अधिकारियों को सुनना होगा, दिल्ली सरकार को भी दिन प्रतिदिन के जो कार्य है कम से कम, हालांकि उसको भी परिभाषित नहीं किया गया है, उसमें सुनना होगा। साथ ही ये भी कहा कि जो पार्लियामेंट की शक्तियां हैं वो असीमित है, तो ऐसे में अभी जो पूरा जजमेंट है वो साफ होना यानी जितेंद्र, अभी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर क्या होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग जिसको लेकर पूरा मसला है, पूरा पेच है, उसको लेकर क्या होता है, इंतजार करना होगा। बिल्कुल थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि स्पष्टता धीरे धीरे आ रही है, लेकिन अभी तक जो है एक बार लगता है कि केंद्र के पास शक्तियां जा रही हैं, दूसरे पर लगता है कि दिल्ली सरकार के पास। दिल्ली सरकार के जो वकील रहे अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तरफ से एक टिप्पणी की गई थी इन तमाम केसेस में। जी जी जीत, मैं आऊंगी आपके पास, हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि एक तरह से केंद्र हाईजैक कर ले रही है सभी फैसलों को, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी पूरी तरह से जजमेंट आना बाकी है। लगातार ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अफसरों पर कंट्रोल को लेकर ये बात सामने आई है कि दिल्ली सरकार का ये अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है अफसरों पर कंट्रोल को लेकर, अफसरों पर अधिकार को लेकर दिल्ली सरकार का ये अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से निष्कर्ष आना बाकी है। अशोक जी, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें अब क्लियर हो गई है कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये तीनों एलजी के अधीन, यानी केंद्र सरकार के अधीन रखा है। बाकी चीजों में अपने पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर दिल्ली सरकार नहीं करेगी। लैंड में जो इन्वॉल्वमेंट तो अफसरों को लेकर था, पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर। मैं जोड़ना चाहता हूं कि अफसरों पर जो कंट्रोल का दिल्ली सरकार का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मुझे लग रहा है ये एक बहुत बड़ी दिल्ली सरकार को राहत है। सबसे बड़ा जो झगड़ा दिल्ली सरकार और एलजी के बीच होता है वह अधिकारियों के वर्चस्व पे लेके होता है कि बिल्कुल, क्योंकि ये भी कह दिया गया कि डे टू डे का जो प्रशासन है वो दिल्ली की सरकार संभालेगी। लोकतंत्र में जो चुनी हुई सरकार है उसके पास सबसे ज्यादा शक्तियां होती हैं। दूसरी तरफ यह भी कह दिया गया कि अफसरों पर कंट्रोल पूरी तरह से दिल्ली सरकार का होगा, यह दिल्ली सरकार का अधिकार है। तो मुझे लगता है यह तो क्लियर हो गया समीर चौगांवकर जी कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसके पास होगा, अब इसमें कोई शक शुबा तो रह नहीं जाता। देखिए, दिल्ली सरकार और एलजी के बीच जो सबसे बड़ी लड़ाई थी वह अधिकार, अफसरों पे किसका अधिकार, इसको लेकर लड़ाई चल रही थी जी। मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि चुनी हुई जो सरकार है दिल्ली सरकार की, वह अधिकारों की अफसरों पर उसका कंट्रोल रहेगा। और ये एलजी को बहुत साफ संदेश है कि वह रूटीन में भी कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, और अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में भी दिल्ली सरकार जो सलाह देगी उसे एलजी को मानना पड़ेगा।